Delhi may soon begin looking very different on Mondays. Here's why. Delhi's CM Rekha Gupta launched a citywide fuel conservation campaign called Mera Bharat, Mera Yogdan. It is aimed at reducing fuel consumption and maintaining economic stability amid the current national situation. And the changes go far beyond just work from home. The Delhi government has proposed 2-day work from home for government offices. CM has issued advisories for private companies to voluntarily adopt hybrid work culture. Every Monday could now become Metro Day, with citizens encouraged to avoid private vehicles and use public transport. The government has also appealed to Delhi residents to voluntarily observe one No Vehicle Day every week. Office timings would also be changed from 10:30 a.m. to 7 p.m. to reduce peak hour congestion. Private firms like IT companies, startups, BPOs, media organizations, corporate offices are also being encouraged to cooperate voluntarily. For many employees, the move brings back memories of pandemic-era hybrid work culture. The Delhi government has also announced multiple fuel-saving restrictions. No new petrol or diesel vehicles will be purchased by government departments for 6 months. Petrol allowances for government officials will be reduced. Officials receiving 200 litres petrol allowance will now receive 160 litres. Officials receiving 250 litres will now receive 200 litres. And at least 50% of official meetings will now shift online. Government departments will also cut domestic travel expenses by 20%. Colleges and universities have been advised to conduct guest lectures virtually wherever possible. The government has also urged businesses to shift cargo transportation from trucks to railway freight systems to reduce diesel consumption. According to the Delhi government, fuel conservation must now become a shared responsibility involving government departments, businesses, institutions, and ordinary citizens. And for lakhs of Delhi residents, that could soon mean fewer office commutes, more online meetings, and crowded Monday metro rides once again. सरकारी वाहन हमारे सभी के सरकारी वाहन हैं। हमने पहले ही मुख्यमंत्री, मंत्री जितने भी हमारे व्हीकल साथ में चल रहे थे उसमें कटौती की है। मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे, ऐसा सबने किया है। और जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो पाएगा उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे। जहां तक अधिकारियों की बात है, अधिकारियों को पेट्रोल का जो लिमिट है वो 200 लीटर और 250 लीटर की है, जिसे हमने 20% तक कम कर दिया है। 200 लीटर पेट्रोल की जिनकी लिमिट थी उनको 160 लीटर की होगी हर मंथ, और 250 लीटर का जिनका लिमिट है उसको 200 लीटर का हर अधिकारी जिनको ये अलाउंस मिलता है उनके लिए कर दिया है। 20% उनको सरकार अब कम इस हेड में पैसा देगी। हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे। ऑफिस टाइम को थोड़ा हमने सेग्रीगेट किया है ताकि सड़कों पे वाहन ट्रैफिक कम हो। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो टाइमिंग है वो 9 से 5:30 का है। हमने दिल्ली सरकार का अपना जो टाइम ऑफिशियल टाइमिंग है वो 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का किया है, और इसके अनुसार ही दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसेस काम करेंगे। एमसीडी को हमने कहा है कि वो सुबह 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक अपने ऑफिसेस रन करेंगे ताकि सड़कों पे व्हीकल मैनेजमेंट हो सके। और जनता से, दिल्ली की जनता से हमारी अपील है कि एक दिन सप्ताह में नो व्हीकल डे, हम सब लोग नो व्हीकल डे अपनी इच्छा अनुसार जिस दिन आपको सुविधा हो कि आज मैं अपना प्राइवेट जो व्हीकल है आज मैं सड़क पे नहीं निकालूंगा, नो व्हीकल डे हम सब लोग इच्छा अनुसार उसको हम करेंगे। ये हमारी जनता से, दिल्ली की जनता से अपील है। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि अगले 6 महीने तक दिल्ली सरकार कोई भी नई व्हीकल
पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड, इनमें से कोई भी नई व्हीकल की खरीद नहीं करेगी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है, जो हमारे कर्मचारी होते हैं जो ग्रेड 1-2 के हैं या ग्रेड 1 से लेके 8 तक के हैं, जिनको सरकार जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है, हम उन सभी कर्मचारियों के, अधिकारियों का ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इसको 10% बढ़ाएंगे यदि वो अपने इस अलाउंस का 25% पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खर्च करते हैं, मेट्रो इत्यादि में खर्च करते हैं, तो उसे सरकार की ओर से 10% एक्स्ट्रा ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। हमारा निवेदन दिल्ली के व्यापारियों से ये भी रहेगा कि वो ट्रक की बजाय अपनी माल ढुलाई के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करें, मालगाड़ियों से सामान भेजें और डीजल बचाए। ये हमारी अपील है जनता से, जिसको वो करेंगे तो हमें बेहतर लगेगा। इसके अलावा दिल्ली में जितनी हमारी गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं, अलग अलग कॉलोनीज जहाँ इकट्ठा गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, वहाँ ऐसी लगभग हमारी 29 कॉलोनीज हैं। उन 29 कॉलोनीज में हमने 58 बसेस का एक पूरा रूट प्लान किया है, जो कि फीडर बसेस रहेंगी उस कॉलोनी से लेकर के मेट्रो तक लाने ले जाने के लिए। तो ऐसा हमने पूरा का पूरा उनका मूवमेंट तैयार कर लिया है। तो 58 बसेस होंगी जो 29 कॉलोनीज को, सारे एम्प्लॉइज को ये फैसिलिटी देंगे कि आपको वहां से लेकर के वो फीडर मेट्रो तक छोड़ के आएंगे। इसके अलावा जो डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंस है, वो भी सभी विभागों का 20% तक कटौती की जाएगी, उसमें भी कमी लाई जाएगी। हमारी ओर से ये कोशिश रहेगी कि 50% मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन हो। 50% ऑफ आवर मीटिंग्स शुड बी ऑनलाइन। हम कोशिश करेंगे कि जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम अपने संवाद को जारी रखें, अपने काम को जारी रखें। इसी तरीके से कॉलेजेस से भी, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, उनसे हमारी अपील है कि नॉन प्रैक्टिकल क्लासेस, गेस्ट लेक्चर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स ऑनलाइन मोड पे वो लोग करें। और इसके लिए हमारा शिक्षा विभाग सभी यूनिवर्सिटीज में पर्सनली बात करके इसको एंश्योर करेगा। फ्लेक्सिबल वर्किंग में या इस सारे प्रोसीजर में कहीं पे कुछ भी दिक्कत अगर मिलती है तो सिंगल विंडो हेल्प डेस्क जो है हमारा लेबर विभाग तैयार करेगा। तो आपका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे जनता अपने बात कर सकती है और उसे ठीक कर सकती है। हम कोर्ट से भी निवेदन है हमारा कि ऑनलाइन हियरिंग को अधिकतम किया जाए ताकि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी बचाव हो। ऑनलाइन हियरिंग पे कोर्ट का अधिकतम का हमारा उनसे अपील है। विदेशी यात्राएं जहां तक बात है, जनता से तो हमारी अपील है ही कि इस पूरा 1 साल हम अपनी विदेशी यात्राओं को जहां तक हो सके ना करें तो बहुत अच्छा होगा। पर सरकार के लेवल पे भी मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार के कोई भी हम मंत्री या कोई अधिकारी अगले 1 साल तक, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ऑफिशियल फॉरेन विजिट नहीं करेंगे। ऑफिशियल फॉरेन विजिट नहीं होगी। 1-2 हमारे प्रोग्राम जो थे तय थे उनको हमने कैंसिल कर दिया। 1-2 अधिकारियों के थे और कुछ माननीय मंत्री के थे, तो वो प्रोग्राम सभी स्थगित कर दिए गए हैं और कैंसिल कर दिया गया उन्हें। ऐसे ही दिल्ली सरकार की ओर से बड़े पब्लिक इवेंट या कॉन्फ्रेंसेस अगले 3 महीने हम अवॉइड करेंगे कि हम ऐसे बड़े इवेंट ना करें जिसमें बहुत ज्यादा लोगों का आवागमन हो, वो हम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए, ये एडवाइजरी होगी। और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा। जितनी बड़ी कंपनीज हैं जहां पे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, पर्सनली हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूंगी, हमारे ऑफिसर्स उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 दिन का एज पर देयर कंफर्ट 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करें।